Hello everyone, this is Prabhakar Alok and I'm the founder of DZ Wale Babu. So today we have Aman Kumar Singh who hails from Patna, Bihar, and he is the founder of Being Creative Advertising, and he's our one of the best and very talented student, and he's also my gym partner. And due to COVID we are not going anywhere, we are only doing in from home. सो जो भी मतलब हमारे अभी नए ऑडियंस जुड़े हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट स्टफ्स यहाँ पे बताया जाता है। आपको अच्छा लगता है तो आप पहले कंटेंट एक बार देख लीजिए जाके सारा वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट जो हो वो कर लीजिए, ठीक है। सो हम अमन से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग कोर्सेज एंड ऑल, सो दैट कि वो हमें क्लियरेंस एक दे पाए कि क्या है क्या नहीं। और कुछ हम जानना चाहेंगे अमन के बारे में कि अमन कौन है और क्या है। तो अमन, ओवर टू यू। आप बताइए कुछ हमारे ऑडियंस के लिए कि आप क्या हैं और कैसे। Thank you so much for introducing me. And hello, everyone. I'm Aman, and I'm the owner of Being Creative Advertising. And basically, not only it's an advertising company, but it's also about online promotion as well as public relation as well. And I would like to say that I'm the first one in Bihar area that I'm the one who is introducing social media influencing through Bollywood celebs. Even in this lockdown, I was in conversation with many celebs like Rajiv Nigam and many others as well. Even last year, I had worked with Preeti Zinta, Gulshan Grover, and many other celebs, which are the Bollywood fame. So I'm working on these things as well as I'm working on public relation as well as I have completed my public relation from Kolkata from Public Relations Society of India with Rhythm Communications. So these are the things. Even right now, I'm initiating public relation into online platforms. So how they can interact with each other. And my journey with Prabhakar Alok is completely different as it was a scene that we met as a stranger as we were not in touch with each other. You can say that we were not in connect with each other so much, but after a few months we were in that connect that we were shopping together, we were gymming together, we were exercising together, we were doing the whole thing. And thanks to him that he has taught me many different things which were different from league as compared to other digital marketers. So thank you so much, sir. या इट्स वेलकम एंड इट्स प्रिविलेज टू हैव यू। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कौन है, तो भाई अमन को फोन करो। कहाँ पे अमन, बाइक लेके आ जाओ, हम लोग चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू आस्क कि जो भी हमारे ऑडियंस है जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जानना, जो बेसिकली एक रिव्यू काइंड ऑफ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई आर यू सेलेक्टिंग me, like why DZ Wale Babu for courses? See, I had selected DG Wali Babu, I think in Jan or Feb. So Yeah, it was the first session. I joined you in a workshop which was on Sunday, and it was exactly. a complete chilly weather. And वो एक ऐसा मौसम था ना कि आदमी रजाई उठा के नहीं जाना चाहता है। और वो तो हमारा आई उस गेस 8-9 बजे था वर्कशॉप का टाइम, आई होप सो। 9 बजे था। 9 बजे, या। हाँ, so from that day the journey began and वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग थे and one of the most different thing which I like मतलब मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा but in comparison to them what I felt जैसे कि बाकी जगह पे जाने पे क्या होता है you will get a particular amount of information and that's it and the workshop is over. But in that particular workshop, which influenced me to be a part of DJ Wale Babu, was the thing that I got in touch with you, and you were not just informing me about different things, but the point, even from as I was much active into social media handling. So on that aspect, you were also helping me because बहुत लोग का क्या होता है, if you are aware of that these things, कि अच्छा ठीक है, social media handling इसको आता है या फिर कुछ कुछ कोड पार्ट आता है, then people used to think कि हटा दो कोई दिक्कत नहीं है. बट यू वर हेल्पिंग मी इवन मतलब कहाँ कहाँ मेरा एरर आ रहा था जिसके वजह से इशू था यू हैव आल्सो हेल्प मी इन दोज एरिया एज वेल इवन आई गॉट टू नो अबाउट वेबसाइट मतलब जिसका एग्जैक्टली। जीरो नॉलेज था और कहा जाता मतलब बेसिक्स जो होता है ना आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था एंड इम्पोर्टेंट थिंग बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर का बताते हैं तो क्या होता है कि जब आप घर नीचे का जमीन आपका मतलब जो भी बेस है वो आप स्ट्रांग नहीं करते हो तो ऊपर का घर चाहे वो 1 तल्ला का हो चाहे 100 तल्ला का हो
आप नीचे बेस नहीं करते वो, सो द थिंग मतलब आपके साथ मेरा पूरा बेस बिल्डअप का जर्नी रहा था, बिकॉज वो जरूरी था मेरे लिए, बिकॉज आई एम मोर इनटू ऑफलाइन एंड देन इनटू पीयर। सो वो दैट पर्टिकुलर जो बेस आपने क्रिएट किया, विच वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। वेबसाइट कैसे बनाना, वेबसाइट में क्या एरर्स आता है, एग्जैक्टली। आपको गुस्सा दिलाना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसके बाद वापस एक्सपेरिमेंट करके पूरा वेबसाइट गड़बड़ करना, उसको वापस सही करना। सो दीज आर थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम यू एंड थैंक्स टू यू। So what was your first reaction when you heard about SWOT analysis? Like, have you ever think यार ये तो पार्ट ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, why SWOT analysis? स्वॉट एनालिसिस मतलब मेरा ऑफलाइन भी है, मतलब आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग देन इवेंट्स एंड अदर थिंग एज वेल। सो मतलब हम लोग वो पढ़े थे हाँ, ग्रेजुएशन के टाइम पे। आई आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, सो मास कम्युनिकेशन में स्वॉट एनालिसिस वाज अ कॉमन टर्म। सो वो था कि ठीक है, आई वाज डूइंग एडवर्टाइजिंग, आई वाज इनटू पैम्पलेट एंड अदर थिंग एंड द होल एस्पेक्ट। सो सडनली ये स्वॉट एनालिसिस डिजिटल मार्केटिंग में आना, इट वाज अ कंप्लीट मतलब 50-50 टर्म था। Because yes, I was sure कि अच्छा एडवर्टाइजिंग का पार्ट है, बट डिजिटल मार्केटिंग आई थॉट दैट इट वोंट बी देयर, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो हाँ, हम्म, थोड़ा थोड़ा देखना ठीक है, बट इट वाज अ कंप्लीट न्यू थिंग, बिकॉज एडवर्टाइजिंग में हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट देखते हैं, बट व्हेन वी मूव टू डिजिटल मार्केटिंग वी हैव टू लुक इनटू अदर एस्पेक्ट एज वेल, कि कौन कितना ट्रेंडी है, कौन किस तरीके से यूज कर रहा है। सो yeah. वी हैव टू एनालाइज दीज थिंग्स। So एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन कि लाइक जब आप कोर्स लेने आते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? लाइक व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशंस कि हाँ मुझे ये जानने को मिले या जो भी है, लाइक क्यों, मतलब आपका क्या एक्सपेक्टेशन था बेसिकली? कि मतलब बीइंग फ्रैंक टू यू, मतलब मैंने ये सोच के ज्वाइन कभी नहीं करा था कि ठीक है मुझे मतलब जिसको कहते हैं ना कि हाँ इसमें एकदम तुरम खां बनना है। बिकॉज व्हाट आई फील कि तुरम खां बनने से अगर मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट आता तो वो बेकार कभी होता ही नहीं। सो एग्जैक्टली। फॉर मी मेरा शुरू से था, मेरे जब मैंने एडमिशन भी लिया था आपसे मतलब बहुत कम जर्नी रही, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली इनटू कि नहीं मुझे सिर्फ बेसिक समझना है। एंड देन फॉर मी बेसिक्स ज्यादा जरूरी था। सो ओके। मेरा मोटो भी यही था कि हाँ बेसिक्स जो है ऑल मुझे वो कवर करना था, बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट न्यू थिंग फॉर मी। So one more question, like how did the course benefited you? Like आपको इससे क्या बेनिफिट मिला एंड ये आपके बिजनेस में कैसे हेल्प अभी कर रहा है? राइट नाउ बिजनेस के एस्पेक्ट में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज अभी का सिचुएशन बहुत ज्यादा हाँ, मतलब वी अप आर डाउन वी ऑल आर हैम्परिंग। लॉकडाउन के टाइम पे ही शायद, हाँ मतलब जब हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 15 मार्च को, तो मतलब उसी टाइम कोर्स, लास्ट क्लास था हाँ, वेबसाइट कोर्स का। हम लोग का बीच बीच में लगभग था, हाँ। यस। हाँ, तो वेबसाइट का क्या था कि मतलब जो लास्ट हम लोग वेबसाइट की हैं, तो जो मतलब जो भी डिजाइनिंग हुआ, आई कंप्लीटेड माय वेबसाइट डिजाइनिंग एज वेल। सो दीज वर द थिंग आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप, और उसके बाद फिर मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करा मैंने फिर। कुछ कुछ नए नए चीजें थी, जैसे कि एसएसएल को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था मेरा, मतलब आपको मैं हमेशा उसके लिए टोकता भी था कि एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है इंस्टॉल, बिकॉज क्या होता है ना, लोग कहते हैं ना कि हाँ यूट्यूब पे आप देख के बहुत चीज सीख सकते हो, आई अग्री आप सीख सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि अच्छा इसको करना कैसे है। तो करेक्ट। यूट्यूब पे होता था कि इवन यू वर सिक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ यार, वो सो वाला मोमेंट तो गजब था, मेरे को भी लगा पता नहीं कोविड है क्या है, क्योंकि तो काफी उस गजब था। समय ऐसा सिचुएशन था कि ज्यादा आपको भी तंग नहीं कर सकते थे। उसके हम्म, बाद क्या था कि जब ऑनलाइन चेक करें तो वो था कि यू हैव टू इंस्टॉल एसएसएल आइदर फ्रॉम क्लाउडफेयर, और हाँ। अदरवाइज जहां से आपका होस्टिंग है वहां पे जाके वो कॉपी पे दिस था। पोस्टिंग तो आपने वो शायद पूरा अपने कहाँ से लिया था? रीसेलर क्लब। हाँ, रीसेलर क्लब, यस यस यस, गॉट इट, हाँ। तो उसमें मेरा सिंगल होस्टिंग था। तो अब रहे तो उसमें फ्री एसएसएल तो था, बट क्या था कि जिस समय वो आप बता रहे थे ना, तो उस समय होता है ना कि आदमी का मतलब थोड़ा स्लिप कर जाता है। तो हाँ। वो दिमाग में एग्जैक्टली आ नहीं रहा था कि मतलब ये एसएसएल इंस्टॉलेशन था कैसे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक था। हमने और वो मतलब जब जब प्रैक्टिकल आप नहीं इम्प्लीमेंट करा उसी टाइम, इस वजह से हाँ ये दिक्कत हो रहा था। हाँ, तो अब वो पर्टिकुलर सीन कंफ्यूजिंग हो जाए कि मतलब करना कैसे है। आपको कॉल किया था, आप बोले वो ऑटोमेटिक आता है। अब क्या हो कि ऑटोमेटिक क्योंकि का मुझे मतलब लगा कि जब होस्टिंग जो हम लोगों ने खरीदा था तो मुझे लगा कि आपने वो पूरा चीज कर लिया है, राइट?
नेम सर्वर चेंज एंड ऑल, वो सारा तो आपका हो गया नहीं तो नहीं, वो ऑटोमेटिक। सारा कुछ हो गया था, बट कैसा होता है ना कि आप बोल रहे थे ना, हम लोग आपने के वर्डप्रेस जनरेशन में जो एक दिक्कत। इंस्टॉल, हाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल जो हुआ था तो एचटीटीपी के नाम से हुआ था, एचटीटीपी एस के नाम से नहीं हुआ था, इस वजह से ये दिक्कत आ रहा नहीं था। नहीं, इश्यू क्या आया था कि एच टी टी पी एस सी के नाम से किए थे। अच्छा। बट क्या होता है ना, कभी कभी एसएसएल में टाइम लगता है, तो हाँ आता वो हाँ ऑटोमेटिक ही है। हाँ, तो वो उसमें क्या हुआ कि लाइव अब होने में आप, टाइम आ जाता हाँ है। हाँ, तो आप बोले कि नहीं वो ऑटोमेटिक आएगा। अब क्या हाँ, हुआ कि उसको मतलब टाइम लग गया था कुछ, तो वो क्योंकि उस थोड़ा टाइम मेरा डिले भी चला था। थोड़ा सा तबीयत का इशू हो रहा था हाँ, काफी ज्यादा कोविड के टाइम। और ये लॉकडाउन और कोरोना पेंडेमिक के चलते क्या होता, वो मतलब अप्रूव करने में भी टाइम लग रहा था। अब हमको लगा कि वो पूरा कैंसिल हो गया। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो आपके साइड से मेरा क्लियर हुआ था, और जो कि मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया था मेरे लिए। सो आप अभी जिम में भी हैं तो क्या मतलब क्यों जिम, मतलब वाई और मुझे क्यों ले गए फिर? दो आई एम ऑल्सो देखिए, जिम फ्रीक पर्सन, बट हाँ अभी मैं छोड़ दिया था, लाइक 2 3 साल 4 साल से मैं जिम बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया था, बट क्यों मुझे भी ले जाया गया? देखिए बेसिकली एक जो चीज है, मतलब ये मतलब खुद भी हम फील किए हैं। पिछले साल शायद मार्च के मंथ में हम्म मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब मेरा जो रिस्ट है ये पर्टिकुलर, वो टूट गया था। तो हम्म यहाँ पे मतलब वापस वो सर्जरी हुआ था, पिन्स डाले थे। तो वो जो मेरा 2 से 3 महीने का गैप था ना, उसमें हम एक डिफरेंस फील किए थे। जब अच्छा। आप जिम करते हो तो आप कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो। बट हम्म द मोमेंट वो पर्टिकुलर चीज छूट जाता है ना, तो आपका वो खत्म हो जाता है पूरा। उसके बाद फिर आदमी अगर आपको बोलेगा ना कि हाँ ये काम कर लो, तो वो हम्म नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे कि आप गांव वगैरह में देखे होंगे, गांव वगैरह में कोई आदमी जिम नहीं करता है। बट द हम्म, रीजन बिहाइंड इट कि उन लोग बहुत ज्यादा अब मेहनत। मतलब काम करने में, चाहे खेती करने में, या फिर उसमें इंडल्ज रहता है। तो वो भी एक काइंड का एक्सरसाइज ही होता है, तो वो बहुत बेनिफिट करते हैं इवन। और मतलब जो सिटीज में हम्म, रहते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है ये चीज करना। तो द मोमेंट यू स्टार्ट जिमिंग, इसीलिए मैंने आपको ही बोला, आप बोले ना कि नहीं मेरा ऐसा तबियत खराब है, मेरा ये इशू रहता है, वो इशू रहता है, तो हमको हम्म। ये दिक्कत है। इवन जिम में आपको कितना जबरदस्ती जिम करवाना पड़ा था, ये हाँ वेट तो नहीं यार, मेरा वो 2 में खत्म हो हो गया। गया, मेरा क्योंकि हो गया था, मतलब जिम से बहुत, मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा इंडल्ज था इसमें, बट एक टाइम होता है ना कि हाँ यार छोड़ो अब हो गया हो गया। जैसे तो आपका होता था ना कि अगर ध्यान दिए हैं आप पे, अगर आप पे प्रॉपर मेरा ध्यान है, हम वहीं खड़े हैं, तो अगर तो 15 का सेट है तो 15 का सेट खत्म होगा। और अगर अगर हम थोड़ा सा भी हट गए, तो 15 का सेट शायद एक काउंट में ही पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाता था। तो ये सब हाँ, चीज होता है ना, जो आदमी शुरू में, मतलब अभी भी अभी के टाइम पे एज अ कोई बिगनर सब लोग इक्विपमेंट यही नहीं आया। करते हैं, हम्म, क्योंकि मैं भी इवन मतलब छोड़े हुए अभी के काफी टाइम पे साल हो भी गए। अभी, हाँ। सो खैर, ये तो पार्ट हुआ अपना, पर्सनल चला गया। एनीवेज, सो वन वर्ड फॉर डीजी वाले बाबू, लाइक अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्यों करना चाहिए, और ज्वाइन क्यों मतलब करेगा ये अगर सीखना चाहे तो? अगर किसी को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले कि मतलब विजन मिशन क्लियर रहेगा, ठीक है, हम्म तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा। मतलब हाँ, थोड़ा जैसे जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो शुरू से अभी तक हम बोले, बेसिक्स नॉलेज क्लियर हो जाएगा। और हम्म बेसिक नॉलेज के साथ सबसे जरूरी है कि आप अगर लाख किसी को सिखा दो, लेकिन वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। सो करेक्ट। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट लगा है कि जो हम कहेंगे डीजी वाले बाबू के लिए, सिंपल सा एक लाइन, कि अगर कोई टीचर कहता है कि 100 बार पूछना है तो 100 बार पूछो, और सही में पूछने पे ही जवाब दे, तो उसके लिए डीजी वाले बाबू सबसे सही है। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं कि हाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइक जस्ट फॉर इरिटेट टीचर, जैसा हम लोग अपने लाइफ में करते थे, मतलब हम लोग का जो था, मतलब पहले हाँ, जो मतलब यूज टीचर करते से थे। नहीं मन हुआ तो टीचर से कुछ भी फालतू क्वेश्चन पूछ लेते थे। क्वेश्चन, हाँ। खैर, नहीं, सो एनी अपकमिंग एनी मैसेजेस फॉर आवर अपकमिंग स्टूडेंट, या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है तो कोई मैसेज लाइक क्यों आए? देखिए सबसे पहले तो एक चीज कहेंगे कि सबसे पहले कोई भी टास्क मिले, जैसे याद है हम हमेशा करते थे, तो आप एक ही चीज बोलते थे कि इतना जल्दी कोई स्टूडेंट कैसे बना के कंप्लीट कर सकता है असाइनमेंट। एग्जैक्टली exactly. जब और हम क्योंकि आपको, मैं आप अपने आज सारे पढ़ाएं, हम स्टूडेंट को, शाम में दे देते थे। हाँ मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता था भाई जो काम दे हमको स्ट्रिक्टली चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल में चाहिए। और मैं देता था भाई, अरे यार शाम में ही कैसे कोई कर सकता है, तो वो मुझे अप्रोच बहुत अच्छा लगा था कि लाइक मतलब तुरंत मिल रहा है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड इसी को बोलते हैं। कोई आज हमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क, तो हम बोले भाई अमन से सीखो।
ये चीज हुआ कि आज मैं काम दिया, सुबह क्लास 10 बजे 11 बजे खत्म हुआ, शाम को 6 बजे रेडी। मैं बोला अरे यार ये क्या बात हुआ, मुझे लगा आराम से 24 घंटा लगेगा, अगला क्लास में पूछेगा। तो वो चीज मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये बेसिकली हम सबको कहेंगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग क्या पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग में इंटर करना है, तो ये आदत होना चाहिए जब तक वर्कोहॉलिक नहीं होंगे, क्योंकि ये फील्ड नॉर्मल नहीं है, इट्स अ फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी हर एक सेकंड निकलता है, तो मतलब अगर 100 भी तो कुछ क्रिएटिव निकालते रहो, ताकि जिससे सीख रहे हो, इवन नहीं भी सीख रहे हो तो पर्टिकुलरली वो चीज निकले। और एक और चीज कहना चाहेंगे, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज टू एनीवन। हम्म। मार्केट नहीं खराब करना, कोई भी अरे मार्केट नहीं, बिकॉज अभी जो सबसे है 99 रुपए में ले लो, ज्यादा ऑफर है वो तो तो मतलब नहीं। अभी ले लो। हाँ, तो इसे मतलब हम नाम नहीं, किसी का भी नहीं कह रहे हैं, बट एक का बात कह रहे हैं कि सीखने के बाद भी अच्छा सीखो, खराब सीखो, बट इस टाइप का मार्केट मत क्रिएट करो। एक क्वालिटी मार्केट रहेगा, आप भी सर्वाइव करोगे, हम लोग भी सर्वाइव करेंगे, जो बेस्ट क्रिएटिव है वो निकलेगा, क्लाइंट को भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो वो पर्टिकुलर डिसाइड करता है। अदरवाइज हम एग्जैक्टली। लोग क्या करते हैं कि वो छोटा छोटा चीज से क्लाइंट को तो डिस्टर्ब किए ही किए, सामने का वाले का बिजनेस गया ही, अपना भी कुछ मंथ का आया अर्निंग, फिर वो भी खत्म हो जाता है। सो बहुत ही अच्छा मैसेज था, एंड थैंक यू सो मच अमन, जुड़ने के लिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म पे नोटिस पे मैंने बोला, एक व्हाट्सएप किया कि आ जाओ अभी इंटरव्यू होगा, एंड यू सेड यस। तो बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो आपके मच। लिए मेरे साइड से हमेशा हाँ है, एनी टाइम एनीवेयर। जब आपको मतलब छूटा हुआ ट्रेन पकड़वा सकते हैं अरे 5 मिनट हाँ, में। वो तो गजब था। सो हम लोग हनुमान नगर से पटना जंक्शन 5 मिनट में ट्रेवल करके ट्रेन, छुट्टा हुआ ऑलमोस्ट ट्रेन हम लोग पकड़वाए थे। हाँ, वो शायद मैं कहाँ जा रहा था, जयपुर शायद जा रहा था। हाँ, हाँ जयपुर जा रहे थे, जिसमें कि आपको लास्ट में याद आया था कि अच्छा आपका ट्रेन है। हाँ हाँ, मुझे लास्ट में याद आया कि अच्छा आज में तो मेरा तो ट्रैवल भी है। और वो भी तुमने ही बताया और था लास्ट शायद। मोमेंट पे हाँ कॉल था, और उस हाँ समय हम कहा, हम बोर्डिंग रोड में। हाँ, वहां से फिर बाइक से आया एंड ऑल, तो वो सब जर्नी बहुत यादगार है, बहुत हम्म। याद रहेगा। सो ये हमारे यहाँ का माहौल होता है गाइज, हम लोग ऐसे अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं। कोई स्टूडेंट का टाइप रहता नहीं है, फैमिली मेंबर की तरह रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम किसी को भी, ये मैं नहीं सोचता कि मैं एज ए टीचर मुझे अच्छा हाँ, लगेगा बोलना। इवन एक और जो बेस्ट पार्ट है, मतलब कोर्स हाँ खत्म भी हो चुका है अपना, बट ऐसा नहीं एक हुआ ना कि हाँ कोर्स खत्म हो गया, बाकी जाके चलो हटो, तुम्हारा काम तमाम है। बट अभी भी अगर हम कहीं अटकते हैं तो हम इनको डायरेक्टली फोन करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा एडमिशन हो गया, पढ़ लिए, छुट गए, तो अब कोई कांटेक्ट नहीं होगा। इवन यही बेस्ट पार्ट है यहाँ का, कि जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। करेक्ट, वही चीज हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट है एज स्टूडेंट की तरह नहीं आए, पहला चीज। दूसरा, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ आए कि हम काम दिए तो काम होना चाहिए। तीसरा, एज ए फैमिली मेंबर की तरह, कि जो भी आपको दुख दर्द परेशानी है, आप आइए हमसे बात करिए, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो चीज करेंगे। सो थैंक यू गाइज, हम लोग अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया। एंड जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आई गेस आपको कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी लगा होगा। सो अगर लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि अभी और भी ऐसे इंटरव्यू सेक्शन आएंगे जो हमारे पास स्टूडेंट, लाइक 1 साल पुराना, 2 साल पुराना स्टूडेंट के साथ हम घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।